I woke up at 7 a.m., skipped my breakfast, went to office, worked super hard, had a salad, took a high protein, high fiber meal. By 4 p.m., I grabbed a black coffee. Finished my board meeting, and after 6 p.m., I realized that I'm a different person. I'm munching on chips while coming back. I was traveling by public transport. I saw a nice samosa and I started eating that. And I don't know what happens every single day. 6 बजे से पहले मैं एक अलग इंसान हूँ, 6 बजे के बाद मैं एक अलग इंसान हूँ. If this is happening with you, stay tuned till the end. Hi, welcome back. I'm Rahul Kamra, founder of Keto Reds. After transforming myself and 1,000 plus people in the last 6 years of my professional experience, this has surpassed 1,200 plus individuals, those who have successfully adapted to keto, got out of keto and have gained not even a single kg in majority of the cases. I want to tell you something. You have decision fatigue. अगर आप जंक खा रहे हैं 6 बजे के बाद, and if you realize that the first half of the day you're a different person and the second half of the day you're a monster who wants to eat everything, you have no problem. You have decision fatigue as a problem. But before I proceed further, pause the video, subscribe to the channel pressing the bell icon. ये एक अकेला इंडिया का चैनल है जहाँ पे कीटोजेनिक डाइट, फैट लॉस, कीटो से कैसे बाहर निकले, कीटो के अलावा फैट लॉस साइकोलॉजी की बात हो रही है, where you get active content on these kind of topics which can help you to strive and which can help you to thrive when you're losing fat so that you can get the best of what I have to offer. Let's get back to the topic by dividing into more chapters. Chapters नीचे आपको बार पे आराम से मिलेंगे. You can also navigate through them so that you can note things, you can learn more, and you can also rewatch them whenever you want to come back to this video. So we'll understand with chapter number 1, what is decision fatigue. Decision fatigue is your brain exhaustion after taking so many decisions. Like from the smallest of things, आप सुबह उठते हो तो उस टाइम पे अच्छा ब्रेकफास्ट में क्या खाना है, लंच में क्या खाना है, टैक्सी कौन सी बुक करनी है, ऑफिस में क्या जाना है, ओपन करना है लैपटॉप, कौन सा प्रोजेक्ट था, कौन सा काम था, कौन सा टास्क था, किससे कनेक्ट करना था, कौन से एचआर से अप्रेजल की बात करनी थी. दिमाग थक गया भाई, खत्म हो गया. Decision fatigue. You are now fatigued. Making so many decisions in your life. You make a decision every now and then. You make a decision when you're taking a shower also. You need to choose shampoo body पे नहीं लगाना, body wash लगाना है, right? ये मेरे साथ हो चुका है बहुत बार, by the way. ये काफी females से relate करेंगी. मैं and specifically people who have lenses and specs also. मेरा -4 का नंबर है तो I couldn't see. मैंने एक बार लगा दिया था shampoo अपनी body पे. Thanks. तो decision fatigue हर इंसान करता ही करता है कहीं ना कहीं. किसी पॉइंट पे होता है, किसी को लेटर होता है, किसी को बाद में होता है. तभी हम क्या करते हैं, कॉफी ले लेते हैं. तभी हमें क्या लगता है कि अच्छा कैफीन से हमें थोड़ा सा रश मिल जाएगा, चाय पी लेते हैं शाम को, थोड़ा सा ना बेटर डिसीजन ले पाएंगे. बिकॉज आपका दिमाग एक टाइम पे तो कहेगा भाई हो गया यार, कितने डिसीजन करवाएगा मुझसे. अकॉर्डिंग टू अ रिसर्च बाय बॉमेस्टर इयल, योर ब्रेन हैज फाइनाइट कैपेसिटी ऑफ मेकिंग थॉटफुल डिसीजंस इन अ डे. इसकी वजह से एज एन एंटरप्रेन्योर मैं लाइफ में ना ये डिसाइड नहीं करना चाहता कि आज मैंने खाना क्या है, आज मैंने पहनना क्या है, आज मैंने करना क्या है. एंड दैट्स व्हाई इफ यू सी मी नॉट अपार्ट फ्रॉम रिकॉर्डिंग वीडियोस, व्हेन आई एम वर्किंग आई एम ऑलवेज इन अ प्लेन टी-शर्ट. 5-6 मेरे पास में टी-शर्ट्स हैं एंड आई सिंपली अप्लाई द सेम रूल व्हिच अ लॉट ऑफ पीपल से दैट Mark Zuckerberg says that he wears a black t-shirt, he wears the jeans, he doesn't want to do this. I personally have tried to adapt to this and it helps me so much more. क्योंकि आपका दिमाग कुछ ही thoughtful decisions एक दिन में ले सकता है. You can't make all the decisions every single day. You need to understand you have a finite capacity to make decisions. Once it is depleted, you are more likely to choose comfort over control. क्योंकि ऑफिस ने इतने सारे decisions करवाती हैं शाम के समय, यार comfortable क्या है, थोड़े चिप्स खा लिए जाए, थोड़ी सी ब्राउनी खा लिए जाए, क्योंकि अब कंट्रोल पर जा चुका है. This is what is decision fatigue. We move to chapter number 2, why it impacts your fat loss. कैसे करेगा इम्पैक्ट ये? पहली चीज, you wake up with a good intention. I want to be my best. I want to be disciplined. Second thing, you skip your breakfast, you have a healthy breakfast. You push through your meetings, you resist on snacks. और शाम हो गई है, अब आपके सारे डिसीजंस हो चुके हैं, आप सारी चीजें देख चुके हो. ऑफिस की टीम मीटिंग थी, आज टीम लंच था, किसी का बर्थडे था, केक कट रहा था, ये कॉर्पोरेट की लाइफ में हो चुका है. अब चैप्टर क्लोज होने वाला है. By evening, you're mentally drained. Your prefrontal cortex, which is the part of the brain which thinks rationally, and your amygdala is completely given up right now. Amygdala thinks about emotional perspective. अब वो कह रहा है भाई सुन, rational चीजें छोड़ दे, मुझे नहीं फर्क पड़ता, सही है गलत खा ले, खत्म, finito, get back to eating. So the reason why overeating by evenings and in the night is not because you are weak, you are drained, and this is what happens with a lot of Keto Reds members also. मुझे रात को मन करा, मैंने खा ली 50 ग्राम peanuts. क्यों मन करा? Because you are not weak, you are drained. And that's one of the reasons why I help people adapt to intermittent fat fasting, circadian rhythm hacking. लोग मुझसे पूछ रहे हैं आप मील कहते हो सनसेट के बाद खाओ.
खाओ। पहली बात तो देखो, कीटो में आपकी बॉडी फूड को अलग तरीके से डील करती है, कार्बोहाइड्रेट्स की तरह नहीं डील करती। कार्बोहाइड्रेट्स में पहले वो तोड़ेगी कैटाबॉलिक, देन उसके बाद में वो उसको जोड़ेगी एनाबॉलिक। कीटो के अंदर आपकी बॉडी कैटाबॉलिक प्रोसेस कम करती है एज कंपेयर टू अदर प्रोसेसेस व्हिच आर स्पेसिफिकली इन रिलेशन टू फूड breakdown. That's why your body has lipase, protease and also amylase. I can get on and on with this logic and make you understand why keeping a meal after sunset. अब इसके लिए थोड़ा सा हम चैप्टर नंबर 3 पे आते हैं, the keto angle. So when you're on keto, कहानी में twist है. The twist is that in the first few weeks you will see that this decision fatigue amplifies. ये जब 1x था, अब ये 3x पे चलेगा, तो आपका decision fatigue बहुत जल्दी आने वाला है। क्योंकि आप पूरे टाइम सोच रहे हो ना, कैन आई ईट दिस, इसमें कितने कार्ब्स है, कितना मेरा रेशियोज है, क्या मैं कीटो पे हूँ, क्या मैं कीटो पे नहीं हूँ, मेरा फैट लॉस क्यों नहीं हो रहा, मेरी डाइट क्यों नहीं हो रही। सो यू आर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग व्हेन यू आर स्टार्टिंग विद कीटो, एम्पलीफाइड हो गई ये चीजें, एंड दिस इज वेयर यू नीड टू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशंस। वी मूव टू चैप्टर नंबर 4, रियल सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन 1, प्री डिसाइड योर मील्स। पहले अपना मेन्यू बना लीजिए, मत सोचिए। एट कीटोरेट्स मेथड जब भी कोई इंसान वैसा काम करता है, आई डोंट गिव देम एनी काइंड ऑफ मैक्रोस। हाँ जी, रेसिपी 1 इज मंडे, रेसिपी 7 इज संडे, ये तुमने रेसिपी आज खानी है। प्री डिसाइड योर मील्स बिफोर हैंड सो दैट यू नॉट डूइंग दिस डिसीजन फटीग गेम। अगर आप एक हफ्ते का मेन्यू ढंग से बना लोगे, यू विल सी योरसेल्फ दैट योर एडहेरेंस लेवल्स इंप्रूव्स बाय 67%। ये मैं नहीं कह रहा, स्टडीज भी कहती है, बट मैंने खुद अपने आप देखा है इतने सारे लोगों को कोच करके। पहले क्या होता था कीटोरेट्स पे, मैं हर दिन ना लोगों को रेसिपी भेजता था। आई टू सेंड देम ईच एंड एवरी डे विद देयर रेसिपीज। आई मूव टू द कांसेप्ट ऑफ अ प्लानर व्हिच हेल्प्स यू टू navigate through the recipes. So today when it is Wednesday, somebody can see what they are eating on Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Monday के लिए नहीं पता, Friday को पता लग जाएगा, Monday, Tuesday, Wednesday. इतना better adherence आया, I could see the entire system working like a charm and they were following things better because decision fatigue नहीं हो रहा, pre-deciding of meals हो रहे हैं। Let's come to second solution, automate. Not like my process. Like so, let me give you more perspective about it. आप सबसे पहले अपने किचन में सारा जंक हटाओ, जो नहीं काम का है कीटो में, आप उसको हटाओ। फैमिली के लिए ठीक है, उसको सेपरेटली रखो, अपने लिए सेपरेटली शेल्फ रखो जहाँ पे आप अपने कीटो के रिलेटेड सारे आइटम्स रखोगे। स्नैक्स ज्यादा आप नहीं रखोगे, एनवायरमेंट को ठीक करो। एक मैं आपको बहुत सिंपल सी बात बताता हूँ, मैं काफी लोगों से भी रिसेंटली बात करता हूँ, वो कहते हैं राहुल 2-3 साल पहले तो आप सब कुछ खुद करते थे। यार एक बात बताओ, मेरा काम है फैट लॉस करना कि मेरा काम है बैठ के वीडियो एडिट करना? क्या मेरा काम है कि मैं तुम्हें इंस्टाग्राम पे चैट करूँ, हाय हाउ आर यू? क्या मेरा काम है कि मैं तुम्हें मैसेज करूँ, हाय वी हैव अ कॉल बुक? क्या मेरा काम है कि मैं ये फिगर आउट करूँ कि कौन सी मेरे को पब्लिकेशन इंक्वायरी आई है जिसको मेरे को आगे बात करनी? आई हैव डेलीगेटेड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। माय जॉब इज टू फोकस ऑन फैट लॉस प्रॉब्लम्स। व्हेन आई स्टार्टेड डेलीगेटिंग, आई वाज रियलाइजिंग अच्छा यार मैं अपने आप को डाइल्यूट कर रहा हूँ, कितना डिफिकल्ट है, कितना ये है। Once I did that, I can focus on things which matter the most. You need to automate your environment. आपको देखना है आपके फ्रिज में क्या अनशन आ रहा है, आपको देखना है आपके शेल्फ में क्या पड़ा हुआ है, आपको देखना है आपके किचन में क्या पड़ा हुआ है। Try to automate your environment. अगर कुछ नहीं मिल रहा ना, अपने फोन के वॉलपेपर को चेंज कर दो, पुरानी पिक्चर लगाओ, नई पिक्चर लगाओ। You see your phone, you're like, wow, this is what I've done. I want to make sure that I keep focusing on the entire process. Number 3, use routines as a safety net. Habit tracking के बारे में जानना चाहते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर आप हैबिट ट्रैकिंग करना स्टार्ट करोगे और हैबिट स्टैकिंग करना स्टार्ट करोगे, दोनों होती है, ट्रैक भी करोगे अपनी हैबिट, स्टैक भी करोगे, योर रूटीन विल बी सेट, यू विल नॉट बी फ्लोइंग आउट ऑफ द रूटीन। नंबर 4, शेड्यूल लो डिसीजन मेकिंग जोन्स इन द इवनिंग आफ्टर ऑफिस 30 to 60 मिनट। मैं कुछ नहीं सोचूंगा, मैंने कोई डिसीजन नहीं रखना इस टाइम पे, कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन अगले 1 घंटे 2 घंटे तक मैंने नहीं लेना है किसी भी चीज के बारे में, खाने के बारे में, लाइफ के बारे में, ट्रैवल के बारे में, ऑफिस के बारे में। दिस विल हेल्प योर ब्रेन टू आल्सो रेस्ट अ बिट। यू डोंट वांट टू मेक दीस काइंड ऑफ डिसीजंस, राइट? यू वांट टू गिव योर ब्रेन सम रेस्ट बाय द इवनिंग। नंबर 5, ऐड इलेक्ट्रोलाइट्स एंड फैट अर्ली। ये काफी लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है। हम सुबह अपनी फैट कॉफी पी रहे हैं, इसमें तो सिर्फ कैलोरीज है। फैट कॉफी गिव्स यू सैटिस्फैक्शन एंड मेक्स यू satiated as well. You need to have it every morning so that you're not feeling completely lethargic. These kind of simple tips and tricks are real solutions for you. I hope you like this video and you found this useful. Comment below अगर आपको इसके अंदर कोई भी और टॉपिक कवर करना है। आप अगर स्ट्रगल कर रहे हो फैट लॉस के लिए, जाओ मेरे इंस्टाग्राम पेज पे, सिर्फ टाइप करो ट्रांसफॉर्म। I'll ask some few questions and interact with you and connect with you on a personal call. नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप मुझसे बात कर सकते हो। If you want to learn how to place your meal timings and change your entire game, check out this video. If you want to learn how to manage a ketogenic diet, आपने पहली बार कीटो के बारे में सुना है, समझ में नहीं आ रहा है, check out this playlist. In this video say I've got confirmations of 4.2 kgs and 15.8 inches lost by more than 275 plus people. Please do watch it. I hope you like this video. See you next Sunday. This is Rahul Kamra signing off.